बोल के लब आजाद हैं तेरे। ये शब्द मेरे नहीं, लेकिन जिनके हैं वो इतनी ही बेबाकी से अपनी हर भावना को बहुत बखूबी बताती हैं। और न सिर्फ अपनी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मंच हम लोग के लिए बनाया है, हम सभी कला प्रेमी लोगों के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, जिसका नाम है कला मंथन। और आज कला मंथन की निर्झर सरिता से ही हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत पे। नमस्कार, मेरा नाम शिवाली है। आप सभी का प्रेरणा के स्रोत में हार्दिक स्वागत। और जैसा मैंने आपको बताया, ये अपनी बात बेबाकी से रखने वाली हरी आंखों वाली लड़की, जो कला मंथन को इतनी बखूबी चलाती है कि लोगों के मन में विचारों को प्रेरणा से भर देती हैं। और एंड दिस नोट आई वुड रिक्वेस्ट सरिता जी टू प्लीज कम ऑन प्रेरणा के स्रोत। हाय मैम, वेलकम टू प्रेरणा के स्रोत। Hi, Dr. Shafali. Thank you so much for inviting. So I would request you to please tell our readers about yourself, tell our viewers about your journey. How did writing happen to you? Thank you so much. Very frankly and very humbly, I tell everyone that I really don't think कि अभी journey उस किस्म की है कि लोगों को बताई जाए और they get inspired or something. But yes, one thing which I definitely try is that हर एक दिन को उसी तरह से जीना चाहिए जैसे कि वो आपके साथ आ रहा है. Keep yourself, some goal in front of you, what you want to do. So, apart from the materialistic things and achievements and traveling and bucket list and everything else which we get, if I say that I have a very tiny dream of being remembered once I'm gone from this world, is through my writing. Now, that's a very tiny and a very huge dream, because when we read writers, when we read some poetry, some story, we watch some film, we watch some documentary, even after ages, when the actor is not there, the director is not there, the story writer is not there, the musician is not there, the voice is there. Whether it is in forms of lyrics, whether it is in form of a song, whether it is in form of a book, whether it is in form of a poetry, as you said, the word बोल के लब आजाद हैं तेरे, जाने कितने सालों पहले लिखा था ना, आज भी हम उसे सुनते हैं तो we get goosebumps, you know. तो अगर अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा मैं लिख के जा पाई जिसे पढ़ के लोगों को अच्छा लगे, उन्हें खुशी मिले या वो कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं, सो वो मेरी जिंदगी का that will be my achievement, that will be the fulfillment of my life. Apart from, yes, you're human, so you have got your human desires, you got your bucket list, वो सब कुछ है. So yes, I'm an aspiring writer. I call myself an aspiring writer क्योंकि अभी writers वाली जो list है वो बहुत बड़ी है. God bless. I think you're being very humble here. No. I'm not, because I proudly say that Hindi literature is extremely rich. I mean, with due respect to every culture and every literature, I feel Hindi literature is very rich. और ऐसे कमाल के नाम हैं, ऐसी कमाल की किताबें हैं, ऐसी इतनी खूबसूरत कहानियां लिखी जा चुकी है और इतना कुछ लिखा जा चुका है कि एहसास होता है कि क्या नया लेकर के आएंगे, आप क्या लिख दोगे ऐसा, और किस तरह से ऐसा लिखोगे कि वो कुछ वाह निकलेगा. तो yes, I call myself an aspiring writer, a poet at heart. चीजों में पोएट्री ढूंढ लेना थोड़ा शौक है मेरा. और उसके अलावा, yes, I call myself as a social entrepreneur because Kala Manthan is something which is giving voice to lot of people. Absolutely. It is helping people to rediscover their hobby of writing, reading. It is taking people back to reading books, exploring literature, and I guess it is spreading positivity. So that's what we do. बहुत बढ़िया. हमें जरा ये बताएं कि आपने लिखना कब शुरू किया, क्योंकि उसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो आपने मुझे सुनाई एक दिन. तो आपका लिखना कब शुरू हुआ, किस उम्र में आपने लिखना शुरू किया और क्या लिखा आपने? मैंने लिखना शुरू किया था when I was in class 9th, and I was always very politically aware kind of person, जो कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अक्सर पॉलिटिक्स और औरतें और साथ में उनके व्यूज, ये तीनों एक ही लाइन में नहीं लिखे जाते. तो अगर पॉलिटिक्स हैं और व्यूज हैं तो उसके आगे इक्वल्स टू औरतें नहीं हैं.
ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हालाँकि चीज़ें बदल रही हैं और बहुत हद तक बदल गई हैं, एंड वी आर प्राउड कि बदली हैं। मगर उसके बावजूद उन बदलाव के पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दबे छिपे तरीके से अभी भी कही जाती हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि आज भी कहना और बोलना बहुत ज़रूरी है। So yes, I started writing when I was in class 9th. That was a time when 9th and 10th when I was there. So India was going through a lot of political upheaval, which we always go. हिंदुस्तान हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है अपनी पॉलिटिक्स में। हम लोग सभी सो बहुत वोकल हैं, मोस्ट पीपल आर हाँ वोकल हाँ, अबाउट सो थिंग्स वी आर उनका। वेरी जी। vocal about. So I had seen the implementation of reservation. I had I was a witness. I was in class 10th when the Babri Masjid and that Ram Mandir that happened. So what is right, what is wrong, that is something different. But what is happening, you are witnessing something. So when you witness something, you cannot give judgment on कि ये सही है, ये गलत है. You should always avoid unless and until you have got that much of wisdom before passing a judgment. Yes, with your all the observations, you can definitely give a certain opinion कि मुझे लगता है ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती थी. And I was always very vocal about my opinion. So I started writing satire, and I feel still till date I feel that I can write satire very well. मेरे मतलब हालिया कुछ नाइन्थ ग्रेड में स्टार्टिंग किया तो सटायर से स्टार्ट किया। I started with satire. वाओ। It was not comedy, it was not the mushy romance of teenage. It was satire, it was a political satire. And I was in class 10th when again I did poetry. And I feel very unfortunate कि मेरे पास वो poetry नहीं है, क्योंकि मेरे पास उस वक़्त इतनी समझ नहीं थी कि मैं इसे सँभाल कर रखूँ, या मैं कुछ लिख रही हूँ तो मेरे पास ये होना चाहिए। लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने अपनी पोएट्री लिखी थी, एंड इन क्लास 10th व्हेन वी वर डिवाइडेड इन दोज़ हाउसेस, स्कूल था, हाउसेस थे, और कॉम्पिटिशन्स होते थे पोएट्री रिसाइटल के, और मैंने अपनी पोएट्री बोलने का डिसीजन लिया था बीइंग अ हाउस कैप्टन, क्योंकि हमारा स्कूल 10th तक था। आई वाज़ इन माय डैड वाज़ पोस्टेड इन उधमपुर, ही वाज़ इन एयर फोर्स। तो हम उस समय पे 10th तक का स्कूल था, हाउस कैप्टन थी, और मैंने खुद का नाम नॉमिनेट किया और अपनी ही पोएट्री बोलना डिसाइड किया। और जब द नेम्स वर अनाउंस्ड, तो 3rd 4th पोजीशन पे मैं नहीं थी, 3rd पे नहीं थी, तो आई वाज़ लाइक डैम श्योर कि अब तो कहीं नाम ही नहीं आएगा। And when the first position was announced, I actually gave that kind of reaction with जो Miss World वाला reaction होता है। आप एक बार वो रिएक्शन हमें करके दिखाएं। I still have that memory, because that was something which actually gave me I think that if you write and people relate with your writing, they agree, your certain writing can get people to admire you, to get connected with you, to be friends with you. And I started liking कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे हम लोगों से दोस्ती करें, so from that time only, I guess my criteria was somewhere in the thoughts actually make a difference in my life, कि अगर वो क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस किस्म की चीजें देखते हैं, और मेरे फिर दोस्तों की जो फहरिस्त है वो उसी किस्म के लोगों की होती चली गई। So if a person who is absolutely not interested in art, literature or anything, I don't find myself कि मैं इनसे क्या ही बात करूं। तो फिर yes, so that was how I started writing. जी। और उसके बाद कला मंथन का विचार कैसे आया? ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कैसे हुआ? Uh, I always feel कि writing is an expression. So even though quality of writing, we do give emphasis on that, but still writing for your expression is something which I am very vocal about it, कि आप अपने आपको किसी तरह से जरूर एक्सप्रेस करो, whether आप बोल के कर सकते हो, अगर आपको है कि you can say anything what you feel like. If you can't, write about it, because bottling up inside is not the solution, because that creates a lot of issues which we see nowadays. So इस बहुत सिंपल से ख्याल से शुरुआत हुई थी, और कि लोग लिखें, अपनी बातें कह सकें, और चूंकि मैं पोइट्री जो भी टूटी फूटी किया करती थी वो शुरुआत थी, तो मेरे को ये था कि मेरे जैसे और भी तो लोग होंगे जो लिखना चाहते होंगे।
So why not to create a platform where, we can once a month or two, once in 2 months we meet and we discuss, we do poetry. Um, um, Pure selfish reason of meeting and connecting with like-minded people. So it started with that thought. धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई और एहसास होने लगा कि जब लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जब हम उनको उनके नाम से बुलाते हैं, उनकी क्वालिटी की वजह से, what they are, what profession they are, with whom they are related, these all things are, मतलब उसका कोई मायने नहीं है, आप क्या हो, आप क्या लिखते हो, and that's what will, and we always remember, यार आपकी वो पोएट्री सुनी थी ना, क्या कमाल लिखा था आपने, and that one thing can give a person an identity, a happiness for weeks. वो उस चीज को पढ़ के मुस्कुराएगा, वो उस चीज को याद करके उसको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा. So I felt कि यार this is something which is very कहते ना कि वो जैकपॉट लग गया है. This is something कई बार ऐसी चीजें लाइफ ऑल्टरिंग, लाइफ टर्निंग मोमेंट्स बन जाती हैं लोगों के लिए, जहां उनको लगता है कि उनका लिखा हुआ पढ़ा गया और उसकी बहुत तारीफ हुई, तो लोगों को लगता है कि हाँ उनका अपना एक स्टैंड है. तो हम लोग जब व्हेनेवर आई कोच पीपल एंड आई टेल देम कि अपना एक हॉबी, आपका डेफिनेटली कोई हॉबी होगा, अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो लिखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करें, बिकॉज वो बहुत जरूरी है कि आपके मन में, जैसे हम कहते हैं कि विचारों को आप व्यक्त करें, अभिव्यक्ति दें, उनको किसी भी रूप में दें. absolutely. So Kala Manthan is doing this job phenomenally good. Tell us about the various branches that you have. I know that कुछ regional branches हैं, and how you girls operating? Yes. So what happened that in Delhi NCR we started having a lot of events. 2018 से शुरुआत करके 2019 तक, whole of 19 we did more than 25 to 28 events across Delhi NCR, Noida, Gurgaon. And definitely I would like to tell कि कुछ ऐसे हमारे live events हुए थे where I particularly remember there was a girl who lost her father, and after a month or so she came on Kala Manthan stage and she narrated a story. It was a story reading session and storytelling session, and she narrated a story, and that was a tribute to her father. And after that story she cried, and she said that after a whole month I'm crying. So Kala Manthan's event were never the typical event kind of thing, very formal, we never had that. It was always that agar us poetry ko sun ke, if someone wants to say something, if someone is feeling something, someone wants to cry, I guess हमें एक बार एक मिला था कि कला मंथन के इवेंट में कोई ना कोई पक्का रोके जाता है. I said because ऐसी चीजें होती हैं और वो apprehension नहीं है. अगर आपको you're feeling something for that poetry or a story, you're free to cry. So ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं where people chose our platform to share very deep secrets of their life through poetries and storytelling sessions. And I think it works like one of your best friend's shoulder. So absolutely. When you need a shoulder to cry on, you can just lean on those people. And I think your platform has been phenomenal there to provide that kind of a support, and also the way that you encourage the young writers. I have seen that myself firsthand couple of times, and I was very touched by the gestures and the kind of appreciation that people were giving. Corrections were being made. It's not that you're doing just for the sake of saying that, yeah, you were good, you were nice and great and all, but there were genuine corrections and pointers given to people, which makes it really unique as a platform wherein you're encouraging people and you're correcting them at the same time. Thank you so much. And yes, now after 2020, we were more, of course, like the whole world, we were stuck to the screen. So we created that, our group, Kala Manthan group was created, and we decided that the mentoring and the connection should not stop even during this time. And that's how that group started. And even though Facebook has a lot of groups, लेकिन उसके बावजूद कला मंथन उनसे अलग है. अलग इसलिए है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज वेरी डिफरेंट. बहुत हाई क्वालिटी हम कंटेंट हमारे ग्रुप पर आता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी सिंगल ग्रुप. लेकिन सिर्फ इसलिए कि चीजें लिखी गई हैं या ट्रेंड में कुछ चल रहा है, वी डू नॉट फॉलो ट्रेंड्स.
बहुत as you said that we definitely encourage new writers, but even though when we are encouraging new writers, we never ever do the appreciation just for the sake of appreciation. I always say there is a difference between content and literature. If I say that ours is a art and literature platform, it gives a huge responsibility on myself and our team to उस नाम को सार्थक रखने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे नाम, हमारे जो छोटा मोटा जो भी हमने काम किया, उस काम को अप्रिशिएट करने के लिए अपनी पूरी बेस्ट विशेस के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ हमारे पास हिंदी साहित्य के जो आज के जो बड़े नाम हैं, चाहे वो ममता कालिया मैम हो, सूर्यबाला मैम हो, the new writers, Nikhil Sachan is there, Divya Prakash Dubey is there. So if these people come with a gesture of कि okay हम कुछ कर रहे हैं, हम उन्हें चीजें बताते हैं, and they happily, wholeheartedly they are coming, it gives a responsibility on our shoulders कि हम उस चीज को एक उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखें. So अगर वो लिटरेचर है तो वो अप्रिशिएट होगा, अदरवाइज आपको बताया जाएगा कि इससे थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, इसमें इस चीज की कमी आ रही है. आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक्स पे पिन पॉइंट करना हमारे ग्रुप की खासियत है, शुरुआत से था कि नहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये तो बचपन में सीखा था, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है. एंड वी स्टिल डू दैट एंड वी एंजॉय, बिकॉज बिल्कुल इरादा नहीं है कि उसमें लाखों लाख ग्रुप में मेंबर्स होने चाहिए. तो अगर लाखों लाख लोगों को इकट्ठा करने का कोई टारगेट नहीं है, तो क्वालिटी पे अगर काम करना है तो विद ऑल हम्बलनेस वी से कि भाई हम ये कहेंगे, इफ यू डोंट लाइक इट योर विश, बट अगर आप वाकई साहित्य को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका लिखा कभी किसी समय में आज के 5 साल बाद किसी ऐसी लिस्ट का हिस्सा बने जहाँ पे कि हाँ ये नए कलमकार हैं, अगर आप उस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आई गेस पीपल आर डूइंग दैट. बिल्कुल बिल्कुल. वो हमने देखा कि हर प्रॉम्प्ट पे लोग जैसे ही प्रॉम्प्ट आता है और इंस्टेंटली पीपल स्टार्ट राइटिंग. मैम आई हैव व्हेन आई वाज लुकिंग थ्रू योर प्रोफाइल, व्हेन आई वाज सर्चिंग थ्रू योर प्रोफाइल, कुछ पिक्चर्स थी जहाँ पे कुछ एसिड अटैक्ड गर्ल्स के ऊपर आपने कुछ काम किया है, तो उस बारे में कुछ बताएंगे. व्हाट इज दैट यू वर डूइंग इन दैट पिक्चर? Okay, so first of all, I'm not directly working with them. There's a wonderful NGO, Shiro's Hangout, और उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक लखनऊ में है और एक आगरा में है. और शिरोज के जो फाउंडर हैं आलोक दीक्षित, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. और उसके साथ जो जिनकी तस्वीरें आपने देखी थी, ऋतु हैं, अंशु हैं, ये वो बच्चियां हैं जो आई गेस जितने भी क्राइम होते हैं, द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दिस इज, I won't say that we can't categorize actually. Every crime is a crime and we cannot categorize a crime that how painful it is, how traumatic it is. But this is one which actually leaves a scar on their face, a very visible scar. And it really makes their life very, very difficult because they go through number of surgeries. There is always a the self-confidence, the trauma which the whole family goes through, वो सारी चीजें हैं. और मैं करीब पिछले 4 सालों से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ. मैं ये कहूंगी कि मैं काम से ज्यादा एक दोस्त के नाते जुड़ी हुई हूँ. दे आर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. तो कभी भी ऐसा होता है कि हमें मुलाकात करने का वक्त मिलता है, हम साथ में कुछ चीजें करते हैं. येस, वी डिड अ सिंपोजियम, कलामंथन शिरोज का जो पहला सिंपोजियम था दिल्ली में, वो हमने हमारे साथ कोलैबोरेशन में था. And that's a very beautiful conversation with a lot of people who are actually working on ground and bringing certain difference to lot of things. तो उनके साथ में ये उस किस्म के लोग हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं. एक होता है कि हम स्क्रीन पे बैठ के बात करते हैं, इसी कमरे में बैठ करके हम बात करेंगे कि गरीबी हटाओ. तो और एक होता है कि वो जमीन पे जाकर के उनके साथ में मिलके काम करता है कि चलो हम कुछ काम क्रिएट करते हैं जिससे तुम पैसे कमाओ और गरीबी ऐसे हटेगी. तो वो जब आप एसी कमरे में बैठ के 1000 लोगों की गरीबी हटाने का प्लान बना रहे होते हो और जमीन पे अगर किसी 10 आदमी को भी आप काम देते हो, आई गेस वो जमीन पे 10 लोगों को काम देना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मेकिंग प्लान्स फॉर 1000 पीपल. Absolutely. तो ये उस किस्म के लोग हैं जो जमीन पे रह के काम कर रहे हैं. These girls, there are 2 restaurants, one is in Agra, Shiro's Hangout, and one is in Lucknow. Amazing, beautiful restaurant. कोई भी अगर जाए आगरा, कोई भी लखनऊ आए,
तो वो इन रेस्टोरेंट्स में ज़रूर जाए। You meet them, you see their confidence, they are bubbling with life, they are amazing dancers, um, they are everything which a girl is। वो उस उम्र में जैसे होते हैं अमूमन लोग, बस वैसा ही है। हाँ, ये है कि वो आपको बार-बार याद दिलाते हैं कि आपके समाज में कुछ ऐसे ऐसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं जिन्हें ना समझ में नहीं आती, जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर किसी लड़की ने ना बोला है तो उस ना की इज़्ज़त करो। एंड इट डेफिनिटली tell us कि there is a lot has to be done on a social level. So that's how I'm associated. नहीं, आपने अभी जो पॉइंट टच किया इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि हम जब एज अ पेरेंट जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो हम लड़कियों को तो बहुत सिखाते हैं कि आप ऐसे रहिए, ऐसे करिए, और लड़कों को हम घास की तरह उगने देते हैं बिना कोई डायरेक्शन दिए, बिना उन्हें ये बताए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है अपने लिए, समाज के लिए, औरतों के लिए। सो मेरे ख्याल से बदलाव तो आ रहा है और बदलाव धीरे धीरे आएगा भी, और हम सभी के कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि हम इस बदलाव को सही दिशा में लेकर आए। सो कला मंथन के आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए मैम, आपके कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं अगर तो उनके बारे में प्लीज बताइए। A very a project very close to my heart is Aao Kahani Baate. So Aao Kahani Baate is, as you said that हम बच्चों को जब when वो परवरिश का जब दौर होता है तो there is a stark difference between how we are rearing up our girls and how we are nurturing our boys. Yes, change is coming. लेकिन जब भी कोई मुझसे कहता है कि बदलाव आ रहा है या समाज में ऐसा नहीं हो रहा है, कभी मैं बहुत कड़वी बातें अगर लिख देती हूँ तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, कहाँ हो रहा है? तो मैंने अक्सर कहती हूँ कि प्लीज़ अपने आस-पास की सोसाइटी और अपने फ्रेंड्स का जो फेसबुक का जो फ्रेंड सर्कल है उसे छोड़ करके बाहर जाइए, यू नो गो टू दैट पार्ट ऑफ इंडिया व्हिच इज़ अननोन टू यू। वो कस्बे, वो गाँव, वो दूसरे शहर, दूसरे स्टेट्स, वहाँ जाइए और वहाँ जाके देखिए। डू नॉट गिव अ कमेंट कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अगर एमएनसी में काम करते हैं तो आप एमएनसी में काम करने वाली औरतों को देख रहे हैं जिनके पास फ्रीडम है। बट आपको नहीं पता है कि देयर इज़ अ गर्ल हू इज़ स्ट्रगलिंग टू टेक अ चूज़ अ सब्जेक्ट एक्चुअली, टू चूज़ अ सब्जेक्ट कि मैं आगे पढ़ सकूँ। मैं 12th के बाद में चूँकि कॉलेज जो है वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं जाऊँगी कैसे? एंड हाउ समवन इज़ हेल्पिंग जस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ वैन सर्विस कि ठीक है, मैं लड़कियों को गाँव से सुबह ले जाऊँगा और दोपहर तक ले आऊँगा। Just imagine I am in debt to those kind of men who are actually helping girls out there. So Aao Kahani Baate is basically a project which is working on emotional wisdom. अगर हम बड़ों को अगर हम चाहते हैं कि आज के 10 साल बाद जो बच्चे आएँ, you know, citizen of tomorrow, if they have a better thought process and they are more emotionally mature and balanced, I guess उन पर काम करना अभी ज़रूरी है। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा जिस पर हम इमोशनल विज़डम की कहानियों के साथ में बच्चों के साथ वर्कशॉप्स लेते हैं। एंड थोड़ा-सा बिकॉज़ यू नो द पैंडेमिक एंड एवरीथिंग इट डिलेड आवर प्रोसेस, बट स्टिल पिछले 6 मंथ्स में आई गेस वी had interaction with more than 3,000 of children with varied age group, and we do stories as simple as anger management and empathy to the strength of your mind, up to how the consent is important when you are dealing with a boy or a girl. When you are into relationships managing When you are into a relationship, तो जो उसका होराइजन है वो बहुत बड़ा है। तो छोटे बच्चों के साथ में गुड टच बैड टच के ऊपर भी बात की जाती है। उनको साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है, यू नो कि हाउ द साइबर वर्ल्ड इज आउट देयर व्हिच इज वेरी लुक्रेटिव, वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट, बट देयर आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू बी अलर्ट, व्हिच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। एंड आई गेस इन सारी ही चीज़ों में अवेयरनेस इज द की। सो वी कांट जस्ट इमेजिन कि नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे और हमारे बच्चा सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। आप नहीं बताओगे उसे कहीं और से चीजें पता चलेंगी और वो गलत तरीके से शायद पता चलेंगी। एटलीस्ट यू आर देयर टू गिव आंसर्स। तो बहुत से यू नो द एलीट स्कूल्स आर देयर, पेरेंट्स आर देयर हु आर अवेयर, दे आर डूइंग दैट। बट हमारे यहाँ का बहुत बड़ा तबका बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है, जहाँ पे पेरेंट्स आर इवन पेरेंट्स आर अनअवेयर, उन्हें नहीं पता चीज़ें क्या हो रही हैं। वो अभी 2 वक़्त की रोटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार ऐसे बच्चे हैं जो गाँव में उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो शहरों में एक कमरे का
एक कमरा लेते हैं और 2 भाई वहाँ रह करके पढ़ते हैं, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 8th में पढ़ रहा है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ वी हैव कनेक्टेड विद। तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि उनको इस किस्म की बातें उनसे कोई शेयर करता होगा। अ सिंपल दैट तुम पढ़ो एंड योर एजुकेशन विल डेफिनेटली मेक योर लाइफ बेटर। ये एश्योरेंस देना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। सो यस, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो आओ कहानी बांटे इज समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज कलामंथन की जो टीम है वो पूरी टीम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है अब मैनेज करने के लिए। तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलता है एंड वी आर ट्राइंग टू यूज द ऑल द there's a psychologist along with us working, so we try and dissect every story कि हम इससे क्या क्या चीजें ले रहे हैं. So we are trying to create it in a very well researched project. So वक्त लगेगा, लेकिन that's how it is developing and that is something which actually gives me on a daily basis कि ना उठ के कुछ करना है. तो that is my ikigai these days. Wow. That our कहानी बातें needs to be shaped up in a certain manner. Beautiful. So पीछे एक किताब रखी है, हरी आंखों वाली लड़की. तो कुछ इस किताब के टाइटल के बारे में बताएं, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है. Okay, so no achievement of mine. It's simply God's grace that He blessed me with something unique. My eyes, few says it is green, few says it is blue, few says it changes color, and I always say that I'm very dangerous because I change colors. So बचपन के वो बिल्ली आंखों वाली की टीजिंग से लेकर के from there to start flaunting it as a hashtag using Instagram of Green Eyed Thinker and Hari Aankhon Wali Ladki. I started using it as something which is I know that it is very beautiful. I mean, without any hitch, I say that it is something very unique, very beautiful. तो उसे सिर्फ बिल्लियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, सिर्फ बिल्लियों से क्यों रजिस्टर करना. So I started that hashtag and I say that I don't write poetry. मैं free verse लिखती हूँ. अगर उसे कविता के पूरे फॉर्मेट में देखा जाए तो मैं दोहे, मुक्तक, छंद मुझे लिखने नहीं आते. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोज उसके नुएंसेस नहीं पता मुझे, although पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं कि एंड यू फील कि वाओ कितना खूबसूरत लिखा है. बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, whether it is poetry or not, it is my thought, whatever I'm feeling on that particular day, I know. और वो मैंने उसको उतार दिया. कभी कभी जब उसको पढ़ती थी तो लगता था कि ये किसी और के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने लिए उसे एक कंपाइलेशन जरूर रखूं. एंड अगेन सेम थिंग कि एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो किताब आ गई है, अमेज़न पे अवेलेबल है, तो अब अवेलेबल वो आज भी रहेगी, 20 साल बाद भी रहेगी, जाने के बाद भी रहेगी. तो वो बस उस एक शौक से. And I never got any better title than for a book which is mine. It is totally my thoughts. There are many poetries which when I read, I understand that उस वक्त क्या mindset था जब मैंने ये लिखा था. So it is that reflection of mine. It is that much me there. So I couldn't find any title better than Hari Aankhon Wali Ladki. So your birthday is around the corner. What plans you have for your birthday and for the coming year? Nothing specific, I guess. Every single birthday, the silver in the hair is increasing along with the wisdom. So both of which I love to flaunt. Wisdom in form of my articles, silver in form of my pictures. No plans as such. I just want that Kalamanthan should grow. More and more people who are actually interested in literature, they should definitely come and share their views on Kalamanthan. Our कहानी बातें takes a better shape जिस तरह से हम उसे लेके चलना चाहते हैं. और मंथन फाउंडेशन एक्चुअली जिसके अंडर हम कलामंथन और आओ कहानी बातें के प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, वो और बेहतर ढंग से काम कर सके. कुछ और चीज़ें हैं जो जहन में चल रही हैं, बस सही वक्त आने पर वो सारी चीज़ें भी शुरू होंगी. सो यस, हरी आंखों वाली लड़की हैज़ लॉट ऑफ ड्रीम्स, डिफरेंट वैरायटी. वो दिल मांगे मोर वाला जो टैगलाइन है वो भी बिल्कुल सूट करता है. सो बस नथिंग मोर. Few more stories, I guess, if I could write.
बस इतना सा ख्वाब है। बस इतना सा ख्वाब, इससे ज्यादा नहीं। जी, हम प्रेरणा के स्रोत से आपके सारे ख्वाब, सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी हों ऐसी कामना करते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड। Thank you so much for gracing this platform. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Shivali. It was lovely interaction. Thank you.